فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے۔ تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد رضی اللہ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد ان کی منتظر ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شمال مشرقی عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مزعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مثنہ بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر آ رہے ہیں اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مثنہ بن حارثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے نوجوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شبخون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو انہوں نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی جو مدینہ کے ایک سالار علا بن حضرمی کے دوش بدوش عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مثنہ نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکیں آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشتوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شبخون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی کہ مدینہ کے سالار خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی آیا ہے تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے کہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ زرتشت کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ 2 برچھی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے، جن کا ایک پیغام لایا ہوں۔ ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہو جلال کو پہچان نہ سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور گنوار آباد ہیں؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے گئے؟ مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایلچی نے جرت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا روب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعونوں سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، لاؤ، تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے ازراہ مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑمڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہرقل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کریں؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرت سے کہا۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔
मुझे जल्लाद के हवाले कर दो, लेकिन ये सोच लो कि मुसलमान मेरे और मेरे मुहाफिजों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेंगे। हरमुज बुदक कर सीधा हो बैठा। गुस्से से उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। वैसी ही सुर्खी उसके चेहरे पर भी आ गई, जैसे कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के उस एलची को कच्चा चबा जाएगा। निकाल दो इसे हमारे दरबार से, हुर्मुज ने गरज कर कहा। 4-5 दरबारी जिनके हाथों में बर्छियां थीं तेजी से आगे बढ़े। एलची के दोनों मुहाफिजों ने तलवारें निकाल ली। पहले वो दोनों एलची के पीछे खड़े थे, अब वो एलची के पहलुओं में इस तरह खड़े हो गए कि उनकी पीठें एलची की तरफ थी। हुर्मुज, एलची ने बारोब आवाज में कहा, जंगजू मैदान जंग में लड़ा करते हैं, अपनी ताकत का घमंड अपने दरबार में ना दिखा। मुझे अपने सालार के पैगाम का जवाब मिल गया है। तुझे हमारी कोई शर्त कबूल नहीं, क्या यही तेरा जवाब है? निकल जाओ इस दरबार से। हुर्मुज ने गुस्से से कांपती हुई बुलंद आवाज से कहा, अपने सालार से कहना कि मेरी ताकत को मैदान जंग में आजमा ले। हुर्मुज के बर्छी बरदार दरबारी उसके इशारे पर रुक गए थे। एलची के मुहाफिजों ने तलवारें न्यामों में डाल ली। एलची पीछे को मुड़ा और तेज कदम दरबार से निकल गया। दोनों मुहाफिज उसके पीछे पीछे जा रहे थे। हुर्मुज ने मुट्ठी खोली जिसमें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम चुड़मुड़ किया हुआ था। चूंकि ये पैगाम बारीक खाल पर लिखा हुआ था, इसलिए ये मुट्ठी खोलते ही सीधा हो गया। हुर्मुज ने ये पैगाम फारस के शहनशाह और शेर की तरफ इस इत्तला के साथ भेज दिया कि वो मुसलमानों से मुकाबले के लिए फौरी तौर पर सरहद की तरफ कूच कर रहा है और वो मुसलमानों को सरहद से दूर ही खत्म कर देगा। हुर्मुज का इकबाल बुलंद हो। उसके एक दरबारी ने कहा, जिस दुश्मन को आप सरहद से दूर ही खत्म कर देना चाहते हैं, वो पहले ही सरहद के अंदर मौजूद है। हुर्मुज ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये वो अरबी मुसलमान हैं, उस दरबारी ने कहा, जो दजला और फरात के उस इलाके में आबाद हैं जहां ये दोनों दरिया मिलते हैं। ये इलाका उबला तक चला जाता है। उन्होंने कभी की सल्तनत ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है। मदीना वालों ने हम पर हमला किया तो ये मुसलमान उनसे मिल जाएंगे। मैं एक अर्ज करने की जरूरत करता हूँ, एक फौजी मुशीर ने कहा। कई दिनों से इत्तलाएं मिल रही हैं कि मुसलमान जो लड़ने के काबिल हैं यानी जवान हैं, वो अपनी बस्तियों से गायब होते जा रहे हैं। वो यकीनन मुसन्ना बिन हारिसा तक पहुंच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो फौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। क्या तुमने फरार का ये सिलसिला रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है? हुर्मुज ने पूछा। फौजी दस्ते बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, फौजी मुशीर ने जवाब दिया। इसके बावजूद मुसलमान गायब हो रहे हैं। हुर्मुज ने गुस्से और तंज से कहा, सरहदी चौकियों को अभी हुक्म भेजो कि मुसलमानों की बस्तियों पर छापे मारते रहें। हर बस्ती की तमाम आबादी को बाहर निकाल कर देखें कि कितने आदमी गायब हैं और कब से गायब हैं। जिस घर का आदमी गायब हो उस घर को आग लगा दो। कोई मुसलमान सरहद की तरफ जाता नजर आए तो उसे पकड़कर कत्ल कर दो या दूर से उस पर तीर चला दो। उस इलाके में मुसलमानों की एक बस्ती थी जो सरहद के बिल्कुल करीब थी। ईरानी फौज की थोड़ी सी नफरी ने उस बस्ती में जाकर ऐलान किया कि बच्चे से बूढ़े तक बाहर निकल आए। सिपाहियों ने घरों में घुस घुस कर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। औरतों को अलग और मर्दों को अलग खड़ा कर दिया गया। सिपाहियों का अंदाज बड़ा ही जालिमाना था। वो गालियों की जबान में बात करते और हर किसी को धक्के दे देकर इधर से उधर करते। उन्होंने ऐलान किया कि उन आदमियों के नाम बताए जाएं और उनके घर दिखाए जाएं जो बस्ती में नहीं है। तमाम आबादी खामोश रही। जवाब दो, ईरानी कमांडर्स ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसे कोई जवाब न मिला। कमांडर ने आगे बढ़कर एक बूढ़े आदमी को गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और उससे पूछा कि इस हुजूम में कौन कौन नहीं है। मुझे मालूम नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। कमांडर ने न्याम से तलवार निकालकर बूढ़े के पेट में घोंप दी और तलवार जोर से बाहर को खींची। बूढ़ा दोनों हाथ पेट पर रखकर गिर पड़ा। कमांडर फिर एक बार लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ। अचानक एक तरफ से 8-10 घुड़सवार सरपट घोड़े दौड़ाते आ गए। उनके सवारों के हाथों में बर्छियां थीं। ईरानी फौजी देखने भी न पाए थे कि ये कौन हैं। उनमें से कई एक के जिस्मों में बर्छियां उतर चुकी थीं और घोड़े जिस तरह आए थे इसी तरह सरपट दौड़ते बस्ती से निकल गए। ईरानी फौजियों की तादाद 40-50 थी। उनमें भगदड़ मच गई। उनमें से 8-10 जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। घोड़ों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी जो दूर हटती गई और अब फिर करीब आने लगी थी। अब फौजियों ने भी बर्छियां और तलवारें तान ली और इस तरफ देखने लगे जिधर से घोड़ों की आवाजें आ रही थी। पीछे से बस्ती की आबादी उनके ऊपर टूट पड़ी। उन सिपाहियों में से वही जिंदा रहे जो किसी तरफ भाग निकले थे। जब सवार बस्ती में पहुंचे तो उन्हें घोड़े रोकने पड़े क्योंकि उनकी राह में बस्ती के लोग घायल थे जो ईरानी फौजियों का किश्तो खून कर रहे थे। इससे पहले मुसलमानों ने यूं खुले बंदों ईरानी फौज पर हमला करने की जुर्रत कभी नहीं की थी। एक ईरानी सिपाही पर हाथ उठाने की सजा ये थी कि हाथ उठाने वाले के पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता था। अब यहाँ के मुसलमान इसलिए दलेर हो गए थे कि उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना की फौज आ गई है।
जिन सवारों ने ईरानियों पर हमला किया था वो कुछ इस बस्ती के रहने वाले जवान थे, कुछ दूसरी बस्तियों के थे। ये महज इत्तेफाक था कि वो मुसन्ना बिन हारिसा की तरफ जाते हुए उस बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बस्ती की आबादी को बाहर खड़े देखा और ईरानी फौजियों को भी देखा। वो छुपकर आगे निकल सकते थे, लेकिन ईरानी कमांडर ने बूढ़े के पेट में तलवार घोंपी तो सब ने आपस में सलाह मशवरे किए और घोड़ों के रुख इस तरफ कर लिए। ईरानी फौजियों ने तो उन्हें जाते हुए देखा ही नहीं था। ये अल्लाह की मदद थी जो उस मजलूम बस्ती को बरवक्त मिल गई थी। ये बस्ती तो खुशकिस्मत थी कि उसे मदद मिल गई और ईरानियों की भयानक सजा से बच गए। मुसलमानों की दूसरी बस्तियों पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। हर बस्ती के हर घर की तलाशी हो रही थी। ये देखा जा रहा था कि कितने आदमी गायब हो चुके हैं। हर बस्ती में ईरानी कई आदमियों को कत्ल कर रहे थे। बाज मकानों को उन्होंने नजरे आतिश भी कर दिया था। 3-4 रोज ये सिलसिला चला। इसके बाद ईरानी फौज को बस्तियों की तरफ तवज्जो देने की मोहलत न मिली। हुर्मुज अपनी फौज लेकर आ गया। सरहदी फौज को भी उसने अपने साथ ले लिया और सरहद से निकल गया। उसका इरादा ये था कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को वो सरहद से दूर रोक लेगा। हुर्मुज की पेशकदमी बहुत तेज थी। मार्च 633 ईस्वी का तीसरा हफ्ता था जब खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने यमामा से 10,000 फौज लेकर कूच किया था। ये मुहर्रम 12 हिजरी का महीना था। उनकी पेशकदमी भी बहुत तेज थी। हुर्मुज अपनी फौज के साथ अपनी सरहद से बहुत दूर काज़मा के मुकाम पर पहुंच गया और फौज को वहीं खैमजन कर दिया। ये मकाम यमामा और उबला के रास्ते में पड़ता था। हुर्मुज को मालूम नहीं था कि उसकी पेशकदमी को देखने वाले मौजूद हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अभी काज़मा से दूर थे कि उन्हें इराक की समत से आते हुए 2 शुतर सवार मिले। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि ज़रतश्तों की फौज काज़मा में खैमजन है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहीं से रास्ता बदल दिया। ये शुतर सवार मुसन्ना के भेजे हुए थे। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ये भी बताया कि वो हफीर के मुकाम तक इस तरह पहुंच जाए कि ज़रतश्तों की फौज के साथ उसकी टक्कर ना हो। शुतर सवारों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को एक खुशखबरी ये सुनाई कि उनके लिए 8,000 नफरी की फौज तैयार है। ये फौज इस तरह तैयार हुई कि मुसन्ना बिन हारिसा, मज़ऊर बिन अदी, हरमला और सुलमा ने 2-2 हजार लड़ने वाले जवान इकट्ठे कर लिए थे। इस तरह खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज की तादाद 18,000 हो गई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी पेशकदमी का रास्ता इस तरह बदल दिया कि काज़मा के दूर से गुजरकर हफीर तक पहुंच सकें, लेकिन हुर्मुज के जासूस भी सहरा में मौजूद थे। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर को दूर के रास्ते से जाते देख लिया। आगे वो रास्ता था जो हफीर से नब्बाज की तरफ जाता था। हुर्मुज ने अपनी फौज को खैमे उखाड़ने और बहुत थोड़े वक्त में हफीर की जानिब कूच करने का हुक्म दिया। हफीर के इर्द गिर्द पानी के कुएं मौजूद थे। हुर्मुज ने वहां खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले पहुंचकर खैमे गाड़ दिए। इस तरह पानी ईरानियों के कब्जे में चला गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अभी हफीर से कुछ दूर थे कि एक बार फिर दोनों शुतर सवार उनके रास्ते में आ गए और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तला दी कि दुश्मन हफीर के मुकाम पर पानी के कुएं पर काबिज हो चुका है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ और आगे जाकर ऐसी जगह पड़ाव का हुक्म दे दिया जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिल सकती थी। फौज ने वहां पड़ाव तो डाल दिया, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया गया कि फौज में बेइत्मीनानी पाई जाती है कि पड़ाव ऐसी जगह किया गया है जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। मैंने कुछ सोचकर यहाँ पड़ाव किया है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तमाम लश्कर से कहो कि अगर दुश्मन पानी पर काबिज है तो परेशान ना हो। हमारी पहली लड़ाई पानी के लिए होगी। पानी उसी को मिलेगा जो जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। तुमने दुश्मन को पानी से महरूम कर दिया तो तुम समझो कि तुमने जंग जीत ली। सालारे आला का ये पैगाम सारे लश्कर को सुना दिया गया और सब एक खूंरेज जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब लश्कर की नफरी 18,000 हो गई थी। मुसन्ना बिन हारिसा, मज़ऊर बिन अदी, हरमला और सुलमा 2-2 हजार आदमी साथ लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से आ मिले थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो एलची हुर्मुज के पास भेजा था वो भी इसी पड़ाव में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और बताया कि हुर्मुज ने उसके साथ कैसा तौहीन आमेज सलूक किया है। इसकी 1 लाख दिरहम की टोपी ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। मुसन्ना बिन हारिसा ने जो पास ही बैठा हुआ था कहा, खुदा ये नहीं देखता कि किसी इंसान के सर पर क्या रखा है। खुदा तो देखता है कि उसके सर के अंदर क्या है, उसके अज़ाइम क्या और उसकी नीयत क्या है और वो सोचता क्या है। 1 लाख दिरहम की टोपी? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरान होकर पूछा, क्या हुर्मुज इतनी कीमती टोपी पहनता है? फारस की शहनशाही का एक दस्तूर है। मुसन्ना बिन हारिसा ने जवाब दिया, उनके यहाँ हसब नसब और हैसियत को देखकर उसके मुताबिक टोपी पहनाई जाती है जो उनके शहनशाह की तरफ से अता होती है।
ज्यादा कीमती टोपी सिर्फ वो अफराद पहनते हैं जो आला हस्ब व नसब के हों और जिन्होंने रियाया में भी और शाही दरबार में भी तौकीर और वजाहत हासिल कर रखी हो। इस वक्त हुर्मुज सबसे ज्यादा कीमती टोपी पहनता है, कोई और 1 लाख दिरहम की टोपी नहीं पहन सकता। इस टोपी में बेशकीमत हीरे लगे हुए हैं और इसकी कलगी भी बहुत कीमती है। फिरौनों ने अपने सरों पर खुदाई की टोपियां सजा ली थीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कहाँ हैं वो, कहाँ हैं उनकी टोपियां? मुझे किसी की बेशकीमत टोपी मरूब नहीं कर सकती, ना किसी की टोपी तलवार के वार को रोक सकती है। मुझे ये बताओ कि आतिश परस्तों की फौज लड़ने में कैसी है और मैदान जंग में कितनी तेजी से नक्लो हरकत करती है। फारस के सिपाही की ज़रा और हथियार देखकर खौफ सा आता है। मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया, सर पर लोहे की जंजीरों के खुद, बाजुओं पर किसी और धात के खोल और टांगे आगे की तरफ से मोटे चमड़े या धात से महफूज की हुई। हथियार इतने कि हर सिपाही के पास एक बर्छी, एक तलवार, एक वजनी गरज, एक कमान और एक तरकश होती है, जिसमें हर सिपाही 30 तीर रखता है। और लड़ने में कैसे हैं? जुर्रत और अक्ल से लड़ते हैं। मुसन्ना बिन हारिसा ने जवाब दिया, उनकी दलेरी मशहूर है। मुसन्ना, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तुमने महसूस नहीं किया कि आतिश परस्तों के सिपाही कितने कमजोर हैं और उनकी जुर्रत की हद क्या है? उनकी जुर्रत की हद आहनी खुद और बाजुओं और टांगों पर चढ़ाए हुए खोलों तक है। वो नहीं जानते कि जज्बा लोहे को काट दिया करता है। लोहे की तलवार और बर्छी की अन्नी जज्बे को नहीं काट सकती। ज़रा और धात या चमड़े के खौल हिफाजत के झूठे जरिए हैं। एक खोल कट गया तो सिपाही अपने आप को गैर महफूज समझने लगता है। फिर उसमें इतनी सी जुर्रत रह जाती है कि वो अपने आप को बचाने की और भागने की कोशिश करता है। अल्लाह के सिपाही की ज़रा उसका अकीदा और ईमान है। मैं तुम्हें फारसियों की एक और कमजोरी दिखाऊं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासिद से कहा, सालारों और कमानदारों को फौरन बुलवाओ, फारी तौर पर काज़मा की तरफ कूच करो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया और कूच बहुत तेज हो। हुर्मुज हफीरा के इलाके में पड़ाव किए हुए था। वो काज़मा से अपनी फौज को यहाँ लाया था क्योंकि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर हफीरा की तरफ आ गया था। अब ये लश्कर फिर काज़मा की तरफ जा रहा था। दोनों फौजों की चंद एक घुड़सवार या एक दूसरे की खैमागाह को देखते रहे। हुर्मुज को इत्तला मिली कि मुसलमानों का लश्कर काज़मा की तरफ कूच कर गया है, तो हुर्मुज ने अपनी फौज को काज़मा की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। हुर्मुज को उबला की बहुत फिक्र थी। ये ईरानियों की बादशाही का बहुत अहम शहर था। ये तिजारती मरकज था। हिंदुस्तान को ताजिरों के काफिले यहीं से जाया करते थे और हिंदुस्तान खुसूसी सिंध का माल इसी मकाम पर आया करता था। ये ईरान का फौजी मरकज भी था। इस इलाके के रहने वाले मुसलमानों को दबाए रखने के लिए उबला में फौज रखी गई थी। हुर्मुज की कोशिश ये थी कि मुसलमानों का लश्कर उबला तक न पहुंच सके। हुर्मुज को उबला पहले से ज्यादा खतरे में नजर आने लगा क्योंकि मुसलमान उबला के जुनूब में काज़मा की तरफ जा रहे थे। मुसलमानों के लिए कूच इतना मुश्किल न था जितना ईरानियों के लिए दुश्वार था। मुसलमानों के पास ऊंट और घोड़े खासे ज्यादा थे। सिपाही हल्के फुल्के थे, वो आसानी से तेज चल सकते थे। उनके मुकाबले में ईरानी सिपाही ज़रा और हथियारों से लदे हुए थे, इसलिए वो तेज नहीं चल सकते थे। 1-2 दिन पहले ही वो काज़मा से हफीरा आए थे। इस कूच की थकन अभी बाकी थी कि उन्हें एक बार फिर कूच करना पड़ा, और वो भी बहुत तेज, ताकि मुसलमानों से पहले काज़मा के इलाके में पहुंच जाएं। उस कूच ने रास्ते में ही उन्हें थका दिया। हुर्मुज की फौज जब काज़मा में मुसलमानों के बिल्कुल मुकाबिल पहुंची तो निडाल हो चुकी थी। मुसलमान सिपाही सहराई लड़ाइयों और सहरा में नकलो हरकत के आदी थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुर्मुज को ये तासुर देने के लिए कि वो अपने लश्कर को आराम नहीं करने देगा, लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुद कल्ब में रहे। दाएं और बाएं पहलुओं की कमान आसिम बिन अम्र और अदी बिन हातिम के पास थी। आसिम बिन अम्र कैका बिन अम्र के भाई थे और अदी बिन हातिम कबीला तय के सरदार थे, जो दराज कद, मजबूत जिस्म वाले बड़े बहादुर जंगजू थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी फौज को लड़ाई की तरतीब में करते देखकर हुर्मुज ने भी अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कल्ब में वो खुद रहा और दोनों पहलुओं की कमान शाही खानदान के 2 अफराद कबाज और अनुशजान को दी। हुर्मुज देख रहा था कि उसकी फौज पसीने में नहा रही है और सिपाहियों की सांसें फूली हुई हैं। उन्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन मुसलमान जंगी तरतीब में आ चुके थे। हुर्मुज ने अपनी फौज की तरतीब ऐसी रखी हुई थी कि काज़मा शहर उसकी फौज के पीछे आ गया। उनके सामने रेगिस्तानी मैदान था और एक तरफ बेआबो गया टीला नुमा पहाड़ियों का सिलसिला था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को इस तरह आगे बढ़ाया कि ये पहाड़ी सिलसिला उनकी पुश्त की तरफ हो गया। अप्रैल 633 ईस्वी के पहले हफ्ते का एक दिन था जब मुसलमान पहली बार आतिशपरस्त ईरानियों के मुकाबले में आए। अगर खालिद बिन वलीद मारा जाए तो ये मार्का बगैर लड़े खत्म हो सकता है, हुर्मुज के एक सालार ने उसे कहा। मुसलमान जो इतनी दूर से आए हैं, अपने सालार की मौत के बाद हमारे मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। फौज से कहो जंजीरें बांध लें। हुर्मुज ने सालार से कहा,
मैं उनके सालार का बंदोबस्त करता हूँ, सबसे पहले यही मरेगा। उसने सालार को भेजकर अपने मुहाफिजों को बुलाया और उन्हें कुछ बताया। जंजीरें बांध लेने का मतलब ये था कि ईरानी फौज के सिपाही अपने आप को इस तरह जंजीरों से बांध लेते थे कि 5 से 10 सिपाही एक लंबी जंजीर में बंध जाते थे। उनके दरमियान इतना फासला होता था कि वो आसानी से लड़ सकते थे। जंजीरें बांधकर लड़ने से एक फायदा ये होता था कि कोई सिपाही भाग नहीं सकता था। दूसरा फायदा ये कि उनके दुश्मन के घुड़सवार जब उन पर हल्ला बोलते थे तो सिपाही जंजीरें सीधी कर देते।